السلام علیکم. میں مصطفیٰ موسوی مجوب، صدر مرکزی انجمن ماتمی گروہان. آج 2 محرم ہم نے اپنی میٹنگ میں طے کیا تھا کہ ہم علاوہ 7 گشت کریں گے. تو اپنے عہدیداروں کے ہمراہ، اراکین کے ہمراہ ہم نے عاشور خانوں میں زیارت کے لیے نکلے تھے اور زیارتیں پوری کی. بی بی کے علاوہ میں کچھ ایشو نظر آیا، وہ والنٹیئرز اور پولیس کے بیچ میں کچھ غلط فہمی تھی، وہ الحمدللہ ابھی حل ہو چکی ہے. والنٹیئرز کو میرا مشورہ ہے کہ شکایت کا موقع کسی کو بھی نہ دیں. پولیس کے پاس ان کی شکایت ہے، اس لیے پولیس ایکٹیو ہے. اور پولیس کو یہ سمجھیے کہ وہ آپ کی اپنی سہولت کے لیے اور قلم کی حفاظت کے لیے رات دن کام کر رہی ہے. ہمارے عاشور خانے، جلوس، آپ کی عزاداری کے لیے پولیس رات دن مصروف ہے. ان کا بھی خیال رکھیے. وعدہ ہے کہ پولیس جو ہے کچھ اپنے تاکید کے بعد والنٹیئرز کو کہا ہے کہ کام کرنے کے لیے، تو ان کے اعتماد کو برقرار رکھیے. دوسری اہم بات، الحمدللہ تمام عاشور خانوں میں روشنی کا بہتر انتظام دیکھنے میں آیا اور سارے عاشور خانے بالکل روشن نظر آئے. اس کے لیے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا اور ان کے ایم ایل ایز، ان کے کارپوریٹرز، اور خاص طور پہ ہماری اپنی قوم سے وابستہ ایم ایل سی صاحب اور جو اپنے کارپوریٹر دونوں بھی متحرک ہیں. اور اس بار جو ہے کافی کچھ بہتری رہی کام میں. میں ایم ایل سی صاحب سے خواہش کروں گا کہ جو روڈ وائڈنگ میں ٹوٹے ہیں مکانات اور دکانات جتنے بھی ہیں، تو اس کے پولز جو ہیں، الیکٹریکل پولز ہو یا ٹیلی فون پولز ہو یا کسی قسم کے پولز ہو، وہ ابھی بھی وہیں پر کھڑے ہیں. تو اگر آپ اس کو پیچھے کروا دیں تو کافی گنجائش فراہم ہو سکتی ہے، جلوس کے لیے بھی، سبیلوں کے لیے بھی، پارکنگ کے لیے بھی. سبیل سے یاد آیا کہ سبیلوں میں کل ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں پہ وہ سبیل پہ کوئی بھی موجود نہیں تھے اور مجلس چل رہی تھی جو ریکارڈڈ ہے، اپنے اسپیکرز میں ڈال کے چھوڑے ہیں. بڑے سنگین مسائل ہیں. تو مرکز کے اس میسیج کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم آپ کے سامنے، سارے سبیل والوں کے سامنے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی قسم کی بھی نہ نوحے نہ مجلس ہرگز نہ لگائیں، کیونکہ اس کا تقدس آپ پامال کر رہے ہیں. یہ بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے. علماء ذاکرین سے بھی خواہش ہے کہ اس جانب توجہ دیں. وہ بڑے بڑے ساؤنڈ باکسز لگاتے ہیں اور نوحے لگا دیے اور چلے گئے سبیل چھوڑ کے. آپ ایک ثواب کے لیے اپنی سبیل قائم کرتے ہیں، نہ کہ یہ گناہ. یہ میری نظر میں گناہ ہے، بالکل گناہ ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس مجلس کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری شہزادی اس فرش پہ رہتی ہے، اور آپ ایسی جگہوں پہ یہ لگا کہ ایک انٹرٹینمنٹ سٹیج نہیں ہے ان سبیل میں. خاص طور پہ خیال رکھیے، اس کا تقدس پامال کر رہے ہیں. ہرگز کوئی نوحے، کوئی بھی مجلس سبیلوں پہ مولا حسین کا واسطہ مت لگائیے. اور آج کل تو ایسی
वो स्टीरियोफोनिक इफेक्ट्स के साथ वो पाकिस्तान के आर्टिस्ट, मैं उनको नौहे खान नहीं मानता, क्योंकि इसलिए नहीं मानता कि वो स्टूडियो में सारे लग़वियात के साथ जो है वो अपने नौहे रिकॉर्ड कराते हैं। नौहे खान हमारे अपने पास हैं, जो आपके अपने घरों में सदाए मातम बुलंद करते हैं आपकी मजलिसों में। आप उन सबको छोड़ करके वो पाकिस्तान के अपने आर्टिस्ट को प्रमोट करना, ये बिल्कुल ही नाइंसाफी है। जो है पिछले 2 साल से जो है ना जायरीन की शिकायत है कि हुसैनी मंच के जो वहाँ पर जो इंतजामिया कैसे जो ठहरे हुए उनसे जो है ना काफ़ी लोगों को जायरीन को तकलीफ हो रही है। उन लोग जो है ना धक्का-धक्की दे रहे हैं, तो ज़ायरतों के वास्ते मुश्किल हो रही है। नहीं, तो अब पाबंदी ये ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना कब से बीबी कैलाए में ये है? देखिए, ये वॉलंटरी खिदमत है, और अब जो यानी कॉम्प्रोमाइज फैसला जो हुआ है, पुलिस को मैंने भी एश्योरेंस दिया है कि लेडीज में लेडीज वॉलंटियर्स ही रहेंगे। हरगिज कोई जेंट्स नहीं जा सकता, और अगर कोई जा रहा है तो आप पुलिस में शिकायत करिए, मेरे से करिए या किसी से भी करिए। मरकजी अंजुमन मातमी गिरोहान की जानिब से कोई वॉलंटियर्स दिए गए वहाँ पर, या नहीं, पुलिस वो की जानिब से कोई वॉलंटियर्स बीबी कैलाए में? पुलिस तो है ही, लेडी पुलिस भी है और जेंट्स भी हैं। बाज़ाब्ता एक इंस्पेक्टर को कंटिन्यू रखे हैं वो लोग 24 घंटे। बाकी अंजुमन सारा मातमी गिरोहान की तरफ से कोई वॉलंटियर थे वहाँ पर? नहीं, हम अपने जो शेड्यूल बने हैं उसके लिए हमारे कोऑर्डिनेटर, कंट्रोलर सभी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ उस शेड्यूल को पाबंदी के साथ मुकम्मल करने के लिए। नहीं, जैसा कि 6 मुहर्रम के बाद काफ़ी तादाद जो है ना वहाँ पर जायरीन आती है वहाँ पर ज़ियारत के लिए, तो वहाँ पर उन लोग को दुश्वारी होती है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उन लोग जो बराबर जो है ना ज़ायरीन को अंदर ज़ियारत करने देते नहीं, हाथ पकड़ कर बाहर खींच देते हैं उनको। जो लोग ज़ायरीन ज़ियारत करना चाहते हैं मगर उन लोग को धक्का मार के बाहर कर देते हैं। अब आप बेफिक्र रहिए, उनका वादा है और हम खुद और पुलिस भी ये नज़र रखेगी कि जनाने के साथ जनानी वॉलंटियर्स, हरगिज कोई मर्दाना कोई बच्चा भी किसी जनाने को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बिल्कुल ताकीद के साथ हम भी बोल के निकले हैं, और पुलिस की भी पाबंदी है, क्योंकि हम अपने जनाने के साथ अगर कोई भी यानी बदतमीजी या उछड़पन जिसको बोलते हैं आप, तेजी के साथ ऐसे बर्ताव कोई करेंगे तो आप खिदमत के लायक नहीं है, आप वो अलावा छोड़ के निकल जाइए। वहाँ सब्र है तो ही आप ठहरिए। अगर आप रात में जागे हुए हैं या फिर आपको गुस्सा है तो आप फौरी अलावा के बाहर निकल जाइए। आप खिदमत के लिए आए हैं तो आपको सब्र भी रखना पड़ता है। मेट्रो ट्रेन की तरफ से जो मलबा पड़ा है या आशूरे तक के साफ हो जाएंगे या नहीं? मैं एमएलसी साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं बात भी करूंगा और ये मैसेज से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। काफी हद तक बहुत आप लोग भी जानते हैं काफी अच्छा काम हुआ है आपका। साथ में हम ये वो उनसे ख्वाहिश कर रहे हैं कि अगर वो पोल और मलबा तो उठ गया, क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि हाथी आशुरे का कब तक लगा देंगे हैदराबाद? आज दूसरी मुहर्रम हो चुका है मगर अभी तक के हाथी का पता नहीं है। देखिए 2 मुहर्रम को कभी भी हाथी कभी कोई साल भी नहीं आया, तो इंतजार करिए, वो जिसकी जिम्मेदारी है ट्रायल होंगे या नहीं होंगे? इंशाल्लाह होंगी। कहाँ से आ रहा है हाथी अभी तो? ये एमएलसी साहब जानते हैं, क्योंकि उनके अपने जिम्मे लिए हैं और वो कोशिश में है, रात दिन लगे हुए। इंशाल्लाह हाथी फराम हो जाएगा और सवारी उसी शान के साथ बरामद होगी। कितने अंजुमन आपके मातम करेंगे आशुरे के? आशूरे के दिन तो कोई यानी हिसाब ही नहीं है, समझिए आप, कम से कम 34 अंजुमन 36 अंजुमन उसमें रहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम बेहतर तरीके से मातम की खिदमत कर सकें। मातम कहाँ तक जाएंगे? दारुल खफा तक जाएंगे, उसके आगे भी है? हम अपील करे हैं कि आज़ा खान जहरा के बाद अगर कोई मातम करना चाहे जो शरीक नहीं होते थे पहले, हाथी तो आगे निकल जाती है सवारी अलम की, तो लेकिन पीछे मातम रखने की हम अक्सर देखा जा रहा है कि आज़ा खान जहरा तो खत्म हो जाता है मगर अब इससे आगे भी जाएंगे क्या? इंशाल्लाह कोशिश रहेंगी कि मातम मुसलसल रहे, लेकिन अलम के रास्ते में कोई रुकावट ना बने। आप क्या इंतजाम करें?
मातमी अंजुमन कुरान को ले लेके आप क्या ताकीद करें? हम यही कोशिश कर रहे हैं कि मातम यानी ख़त्म तक चले, लेकिन हमारी ख़ास तौर पे और रहता भी है, मैं कोई नई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, अलम के रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए, हमारी कोशिश ये है। और सभी लोगों के बारे में तो मैं अपने उलमा और ज़ाकिरीन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ख्वाहिश है मेरी कि आप जो रिकॉर्डिंग चल रही है, नौहों की हो या मजालिस की, इसकी अजमत बताइए। अगर किसी को नहीं मालूम है तो उसकी अहमियत बताइए कि मजलिस कितनी मुक़द्दस होती है। कौम के नौजवान बच्चों से क्या अपील करें? आज़ादारी में मशगूल रहें और कोई काम ना करें कि बस हमारी जिम्मेदारी हमारे पे इन दिनों में यही है कि बस जितनी हो सके आज़ादारी करें, बस इससे ज्यादा और हमारे लिए कोई काम है ही नहीं। हम अपने सब काम बंद करके यहाँ बैठने का मतलब ही ये है कि हम आज़ादारी में मशगूल रहें और कोई एक्टिविटी मत करिए, बस आज़ादारी में मशगूल रहिए और जितनी भी करे कम है। आप इसका खास ख्याल रखिए। मैं नेक तमन्नाओं के साथ ये दुआ के साथ कि मौला तमाम लोगों की आज़ादारी को कबूल करें और पुलिस का भी एहतराम करिए, वो आपके लिए जाग रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपकी कौम से हटके भी दूसरी कौमें आशुर खानों में हाजिरी देती हैं, तो उनके साथ भी हुस्न सलूक से पेश आए, कोई बदतमीजी। ये हुसैनियत की तशहीर है। हुसैनियत क्या होती ये दिखाने की ज़रूरत है, ये दिखाने के दिन है। तो मेरी ख्वाहिश है बस हुसैनियत का ही मुजाहरा करें। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।